Students, a quick revision of recursion. You need to understand the process. As I've already told you in the main video that recursion has got a base case and a recursive case. Here a plain process I am showing so that you could understand it in a better way. So here you can see a function is there, and basically I want to explain this here so that you could deal with the output question. So here students, a void show function is there and one number I passed, and the initial value for the num is 1, and if num greater than 20 return, that means when the value of num crosses 20, return is there, means the this function execution will be terminated. Okay, so this is basically students the base case. After that students, we are having here the print statement that will print the number. So here when the number will be printed, what will be printed? When the value of num is 1, so 1 will be printed, because this condition is false, so automatically control will be here. After that, this function show is called again with a new value, and this time the value will be 2. So again, the control is transferred here to the function definition, and here the value of num is now 2, which is again less than 20. This is not going to be executed. Again the control comes here, 2 is printed, then 3, then 4, and so on. So this actually what happens to students in the recursion, a stack is formed for every new function call or a recursive call. A separate memory area is allocated, which you can see here, students. And first time when the function has been called, so it has given the output 1. Then again the function has been called with the value 2, so 2 has been printed now up to 20. So the output will be basically students from 1 to 20, and the moment the value of num becomes 21, जैसे ये 21 हो जाता है, ये आपका जो प्रोसेस है रिकर्जन का, ये टर्मिनेट हो जाता है. तो आउटपुट स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and up to 20, all the numbers are there. Now students, we go for another format. Here you can see students that what is here, void show, again the same function, and with the same base case, but what is different this time here, the function call is before the printing. So here what happens that every time the control is coming here, like value of num, जैसे आपको num की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सो द कंट्रोल यहाँ पर जब आ जाता है, तो वो देखता है कि नम जो है उसकी वैल्यू 1, सो 1 ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन फॉल्स है बिकॉज 1 इज़ लेस देन 20, सो ऑटोमेटिकली कंट्रोल इज हियर. सो अगेन ये फंक्शन कॉल हो जाता है, रिकर्सिव कॉल इज देयर विद द न्यू वैल्यू दैट इज़ 2. Now the value of num is 2, the control comes here, again the base case is not true, control comes here and again what it finds, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट मिलता है. तो अब की बार शो फंक्शन कॉल होता है विद द वैल्यू 2. क्या प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे? अभी कंट्रोल यहाँ पहुँचता ही नहीं है, तो प्रिंटिंग तक बात नहीं पहुँचती, सबसे पहले वो अगेन वो फंक्शन कॉल कर लेता है. तो विद द वैल्यू 2 3 4 5 6 7, सो हियर अ स्टैक इज फॉर्म. जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रीवियस फंक्शन में स्टैक था, वैसे यहाँ पे भी स्टैक फॉर्म हुआ है. डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं होती है, पहले ये कॉल करता रहता है एक के बाद एक. जैसे ही फंक्शन में जो नम की वैल्यू 21 पहुँचती है, तब ये रिकर्जन टर्मिनेट होता है, तब ये बैक ट्रैक करता है. बैक ट्रैकिंग में वापस जाता है और ये अपनी जो वैल्यूज़ है, बिकॉज जो रिकर्सिव कॉल जितनी भी हुई हैं यहाँ पे, उन सब के साथ एक स्टेटमेंट एसोसिएटेड था, कौन सा, प्रिंटिंग द नम. तो जब लास्ट कॉल, बिकॉज स्टैक का यही कंसेप्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो अब ये जब ये बैक ट्रैक करता है, वापस जाता है कॉल पे, अलग अलग जो भी आपकी कॉल मेमोरी में है, तो वो उसकी वजह से वहाँ पर आउटपुट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और उससे पहले 20 प्रिंट होता है, फिर 19, फिर 18, 17, 16, similarly it goes up to number 1, because that was the very first call with the value of num 1. तो ऐसे ही स्टैक स्टूडेंट्स फॉर्म होती है, और डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि पहले में हमने जब कॉल जो आपका लास्ट एग्जांपल था, उसमें आउटपुट क्या था, उसमें आउटपुट 1 2 3 4 5 अप टू 20 था, बिकॉज वहाँ पर प्रिंटिंग आप देखिए, जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो रिकर्सिव कॉल के पहले है, तो जिस ऑर्डर में नंबर उसको मिल रहे हैं वो ऑर्डर सेम फॉलो कर रहा है.
जैसे ही आपने वहाँ चेंज किया कि आपने रिकर्सिव कॉल पहले कर दी, प्रिंट स्टेटमेंट बाद में कर दिया, तो इसने आउटपुट का जो सीक्वेंस था, जो भी था आउटपुट, वो रिवर्स ऑर्डर में चला गया। तो पहले आपकी जो रीसेंट कॉल है, रीसेंट कॉल मतलब स्टैक में जो टॉप पे है, कौन सी टॉप है, विद द शो वैल्यू ऑफ नम 20, तो वो पहले उस जब आउटपुट देगा तो वो पहले उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट का। सो 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड सो ऑन अप टू 1। ऑल राइट, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब एक बहुत ही यूनिक केस यहाँ पर ऐसा है कि आपने वॉइड शो INT नम, नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। अब पहले यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी 1, बिकॉज हमने आपको इनिशियल वैल्यू क्या बोली नम की, अभी हमने 1 प्रोवाइड करी। आप जो भी वैल्यू देंगे इनिशियल, सेम वैल्यू विल प्रिंटेड हेयर। तो ये तो ठीक है। उसके बाद रिकर्सिव कॉल उसको मिलती है, अब की बार नम प्लस 1, तो उसने क्या किया, नम को 1 से बढ़ा दिया, नम दिस टाइम 2, फिर से कॉल पे जाता है और उसके बाद 2 प्रिंट हो जाता है, देन 3, देन 4। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, हमने जो रिकर्सिव कॉल है वो हमने बेस केस के पहले प्रोवाइड कर दी है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर वो कंट्रोल यहाँ पर आ नहीं पाता है, जहाँ पर उसको बेस केस एग्जीक्यूट हो, जैसे ही वो आता है उसके पहले ही वो जो है रिकर्सिव कॉल मिल जाती है उसको। तो इसकी वजह से इनफाइनाइट बन जाती है, दिस प्रोसेस बिकम्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रिकर्जन यहाँ पे हो जाता है। और इसको आप स्टैक देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। आपको पहले ही कॉल मिल रही है तो आप 1, 2, 3, 4, मीन्स इसकी कोई लिमिट नहीं है, इट बिकम्स इनफाइनाइट। रीज़न उसका वही है कि वहाँ पर जो आपका बेस केस है वो आपका रिकर्सिव केस के बाद दिया हुआ है, तो कंट्रोल यहाँ तक ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको रिकर्जन का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो और जब भी आपको मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया हुआ है, जब आपको रिकर्सिव प्रॉब्लम आती है और आप बिगनर्स हैं, तो आप एक लूप बना लें, जो मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। और लूप के थ्रू आप क्या अपडेट होगा, क्या रिपीट क्या हो रहा है, वो सारी प्रोसेस देखिए, कब टर्मिनेट होता है उससे आप बेस केस जनरेट करिए, उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने स्पेसिफाई कर रखी हैं, तो उन वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखिए, राइट। आई होप आपको ये आउटपुट को निकालने में भी काफ़ी ये वीडियो हेल्प करेगा। थैंक्स एवरीवन।